these kind of drug can able to kill the bacteria. Penicillin is the most widely effective and the least toxic drugs, high margin of safety. Penicillin discovered in 1928 by the Alexander Fleming. Inhibition of transpeptidation reaction or cross-linking of linear peptidoglycan chain of the cell wall. जो peptidoglycan main component है सेल वॉल का, इसकी ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को स्टॉप करता है. वेरी लीथल इन्फेक्शन वी कैन एरेडिकेट विद कम्बिनेशन थेरेपी. पेनिसिलिन के साथ हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स. एक इसकी गड़बड़ है कि ये जो ड्रग है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ज़्यादा है. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Abdul Qudoos. After introduction to chemotherapy, students start करेंगे the first lecture on bacterial cell wall synthesis inhibitors, or you can say that inhibitors of bacterial cell wall synthesis. हमने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. द फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग पेनिसिलिन स्कोप और सेकंड में हम रिमेनिंग ड्रग्स को डिस्कस करेंगे. आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. आफ्टर दिस पार्ट ऑफ लेक्चर स्टूडेंट यू मस्ट बी एबल टू डिफाइन द सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स एंड देयर टाइप्स. Secondly, you must be able to classify the penicillins, or third में describe the mechanism of action, mechanism of resistance of penicillin, और last में enlist the therapeutic uses or clinical uses and adverse effects of penicillins. जी आते हैं inhibitors of bacterial cell wall synthesis. What they are? Basically a group of bactericidal drugs which selectively interfere with the synthesis of bacterial cell wall. You better know about the bactericidal effect. These kind of drug can able to kill the bacteria. The bacterial cell wall is composed of a special type of structure known as peptidoglycans. A structure is not present in mammalian cells, so that's why हम selectively can block these kind of structure. इसकी synthesis को हम block करके specifically bacteria, microorganism को kill कर सकते हैं with chemotherapeutic agents. Human beings पे या host cells पे इसका इतना effect नहीं आता, और that's why cell wall synthesis inhibitors like penicillins more safer drugs हैं, even कि हम pregnancy में भी advise कर सकते हैं. They are the maximally effective when the bacteria are rapidly growing and synthesizing their cell wall, so called the cell wall active drugs. ये नहीं हो सकता कि जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया जो अपनी सेल वॉल सिंथेसाइज रैपिडली नहीं करते उन पे ये ड्रग इफेक्ट नहीं करेगी. Include important drugs like penicillins, cephalosporins and vancomycins and many other drugs. Types क्या हैं cell wall synthesis inhibitors drug की? The first is Beta Lactam drugs and non-Beta Lactam drugs. Beta Lactam basically 4-membered structure present in the structure of antimicrobial agent. अगर तो इनके chemical structure में ये Beta Lactam ring present है तो ये बीटा लैक्टेम ड्रग्स हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं. अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो नॉन बीटा लैक्टेम ड्रग्स होंगी. सो वी हैव बीटा लैक्टेम ड्रग्स, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, Cephalosporins and Cephamycin, Monobactam जिसमें Aztreonam है, और नंबर 4 पे अगर आप देखें बीटा लैक्टम इनिबिटर्स. बीटा लैक्टम इनिबिटर्स बेसिकली इनका जो एक्शन है वो एंटी बैक्टीरियल एक्शन नहीं है, लेकिन ये वो ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं सेल्फ मैकेनिज्म में, जो एंजाइम बीटा लैक्टमेज उनको इनिबिट करता है, और समटाइम ये ड्रग्स हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग के साथ इकट्ठा देते हैं. तो वी हैव, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम प्रेजेंट है तो हम इसको भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में रीड करेंगे, जिसमें सल्बैक्टम है, ताजोबैक्टम और क्लैवुलेनेट लाइक ड्रग्स. नंबर 5 में अगर आप देखें कार्बापेनम्स हैं, एर्टापेनम, इमीपेनम लाइक ड्रग्स. ये बीटा लैक्टम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स हैं.
सेकेंड ग्रुप में नॉन बीटा लैक्टम ड्रग्स, जिसमें बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। द मेन प्रोटोटाइप, मेन ड्रग्स जो है वो वैनकोमाइसिन है। इसके अलावा बिट्रासिन और साइक्लोसेरिन लाइक ड्रग्स। ओके जी, पेनिसिलिन्स। Penicillins are the most widely effective and the least toxic drug. हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इनका जो थेराप्यूटिक विंडो है बहुत वाइड है। अगर पेशेंट गलती से डबल डोज भी लेता है तो इतना एडवर्स इफेक्ट पेशेंट में नहीं आता। दे लैक ऑर्गन टॉक्सिसिटी बट acute anaphylaxis is the significant and lethal adverse effect of this medicine, penicillins. Or many other member of this group, antibiotics are currently drug of choice for a large number of infectious disease. आज भी यूज़ होते हैं पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन। पेनिसिलिन की अगर हम हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर्ड हुआ इन 1928 बाय ए स्कॉटिश आई थिंक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फेलमिंग। ड्यूरिंग हिज रिसर्च वर्क जब इसने देखा कि स्टेफिलोकोकस का जो फंगस कंटामिनेटेड फ्लूइड था वहाँ से एक ऐसा लिक्विड आया है जिसने उसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल किया है या उसके जो लाइसिस में अपना रोल प्ले करता है। और बाद में उसने इसी मटेरियल को देखा कि डिफरेंट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी ये मटेरियल, ये जो सॉल्यूशन केमिकल है, ये किल करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो while studying Staphylococcus variant in the laboratory of St. Mary Hospital in London, जो अलेक्जेंडर फेलमिंग है, he observed that the mold bacteria in the vicinity to undergo lysis. Both in this, in which the fungus was grown, was markedly inhibitory for many other microorganisms because of mold belong to the genus family उसकी Penicillinum था, तो फेलमिंग ने नेम इसका पेनिसिलिन रख दिया। In 1941 penicillin was developed as a systemic therapeutic agent and tested on the old terminally ill lady having cancers। और पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम मोस्टली यूज़ किया है 1944 में ऑन द सेकेंड वर्ल्ड वार, सोल्जर हैविंग मल्टीपल वॉन्ड्स। और 1945 में इसको इस इन्वेंशन पे, डिस्कवरी पे अलेक्जेंडर को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ओके जी, हम पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत मीनिंगफुल है, तो हम इसके स्ट्रक्चर को, केमिस्ट्री को एक दफ़ा डिस्कस कर लें। पेनिसिलिन्स आर कॉल्ड बीटा लैक्टम ड्रग्स because of unique four-membered beta lactam ring present in their structure. You can see that. The basic structure of penicillin is 6-aminopenicillinoic acid. 6-aminopenicillinoic acid consists of one ring A, thiazolidine, which connected to the beta lactam ring B, to which attach a side chain R. You can see that the thiazolidine ring attached with the beta lactam ring और इसकी side chain जो इसकी इंटेग्रिटी को प्रिजर्व रखता है। और द इंटेग्रिटी ऑफ this molecule of penicillin is essential for the biological activity. Metabolic transformation or chemical alteration, या आप कह सकते हैं hydrolysis of this kind of structure beta lactam by the bacterial enzyme beta lactamase, जो प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इसको मेटाबोलाइज करता है, इसकी शेप को चेंज करता है और इसकी एक्टिविटी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है इसको डिस्ट्रॉय करता है। सो मेन एक्शन जो पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टामेज एंजाइम है इसको कन्वर्ट करता है मेटाबोलाइट्स जो पेनिसिलिनिक एसिड है, जो फंक्शन लेस मॉलिक्यूल है पेनिसिलिन का, और इस तरह ये अपना इफ़ेक्टिवनेस खो देता है अगर बैक्टीरिया अपने सेल्फ डिफेंस में ये एंजाइम बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस करता है। तो उन इंडिविजुअल्स में जिसमें बीटा लैक्टामेज एंजाइम, बीटा लैक्टामेज
होल्डिंग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो वहाँ पेनिसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती है। Classification of penicillin, student in first class is natural penicillins and it cognates, for example penicillin G, benzyl penicillin जो इंट्रावेनस इंजेक्टेबल फॉर्म में है, और पेनिसिलिन वी फिनोऑक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो ओरली अवेलेबल है और इट्स रिपोजिटरी प्रिपरेशन है। सेकंड में सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टामेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है। ये वो पेनिसिलिन है जो बीटा लैक्टामेज, जो मैंने अभी बताया कि एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग एंजाइम है उसमें ये रेजिस्टेंस है और उसके होते हुए भी अपना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मेथिसिलिन, नेफिसिलिन एंड ऑक्सोएक्साइल पेनिसिलिन, फॉर एग्जांपल ऑक्सासिलिन लाइक ड्रग्स। नंबर बी, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जिसमें अमाइनो पेनिसिलिन है। अमाइनो पेनिसिलिन में आप देखिए इमॉक्सिसिलिन, आजकल इमॉक्सिसिलिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसके साथ एम्पिसिलिन और इसके प्रोड्रग्स हैं। सेकंड सोडोमोनाल पेनिसिलिन है जिसमें कार्बोक्सी पेनिसिलिन है, टिकारसिलिन लाइक ड्रग्स, और यूरो आइडोपेनिसिलिन में जिसमें पिपरासिलिन लाइक ड्रग्स अवेलेबल हैं। ओके जी, अब आते कम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन विद बीटा लैक्टामेज इनिबिटर्स। ये वो पेनिसिलिन है जो हम बीटा लैक्टामेज जो बैक्टीरियल प्रोड्यूसिंग एंजाइम है जो अपने सेल्फ डिफेंस में प्रोड्यूस करते हैं, उनके इनिबिटर्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव फिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ एमॉक्सिसिलिन विद क्लैवुलेनेट, ऑगमेंटिन के नाम पे आपको याद होगा, हमारे रीजन में अवेलेबल है। इसके साथ कुछ अदर प्रिपरेशन है, एम्पिसिलिन में सल्बैक्टाम है, पिपरासिलिन टाजोबैक्टाम के साथ, और टिकारसिलिन क्लैवुलेनेट के नाम पे अवेलेबल है। Penicillin units and formulations. Student, we have two type of penicillin, एक synthetic, सेमी सिंथेटिक और एक नेचुरल। जो नेचुरल फॉर्म ऑफ इंसुलिन है इसकी जो डोज है वो यूनिट्स में है। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन जी originally expressed in units. For example, 1 unit is equal to 0.6 microgram or 1 million units is equal to 0.6 gram, or crystalline sodium penicillin containing about the 1600 unit per ml. और इसके साथ अगर आप देखें सेमी सिंथेटिक फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन आर प्रिपेयर्ड बाय द वेट, जितना वेट है मिलीग्राम में उतनी डोज अवेलेबल है। और पेनिसिलिन्स आर डिस्पेंस एज सोडियम और पोटाशियम, कैटाइंस के साथ अवेलेबल है। पोटाशियम पेनिसिलिन जी कंटेन पोटाशियम 2.8 और द सेम नेफिसिलिन कंटेन पोटाशियम अगेन 2.5 इक्वल मोलर ऑफ ग्राम। Stability of dry crystalline form stable at 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईयर। इसको पाउडर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में ही रखते हैं। अगर आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे और वो 24 आवर्स में आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर उसको आप रखते हैं तो वो सेफ़ है। अदरवाइज़ हम फ्रेश प्रिपरेशन को फ्रेशली बनाते हैं और जब लिक्विड बनता है सोल्यूशन फॉर्म को हम फ्रिज में रखते हैं और विद इन वीक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, आते हैं मैकेनिज़्म ऑफ पेनिसिलिन्स एक्शन पे। पहले तो आपने मेन पॉइंट्स को जहन नशीं करना है। वी हैव 5 मेन पॉइंट्स इन मैकेनिज़्म ऑफ पेनिसिलिन्स एक्शन। फर्स्ट, बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट, ये जो ड्रग प्रोड्यूस करती है बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट्स हैं। सेकंड, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटिंग इफेक्ट रखती हैं। नंबर 3 पे, ओनली एक्ट व्हेन बैक्टीरिया इज़ रैपिडली ग्रोइंग और सिंथेसाइजिंग देयर सेल वॉल। थर्ड में हैव टाइम डिपेंडेंट एक्शन और नॉन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट या कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट इफेक्ट। और 5 में ये इसकी जो मेन एंट्री है, जो इसकी प्रेजेंस है इन देयर फाइनल डेस्टिनेशन, जो प्लाज्मा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की तरफ है, इसको क्रॉस करना पड़ता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिफरेंट स्ट्रक्चर पे। अब हम डिस्कस करेंगे। वी हैव 2 टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखिए, ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिक कंपोनेंट है सेल वॉल का प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, एज़ कम्पेयर टू पेप्टाइडोग्लाइकेन जो मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का, ये वेरी थिन होता है इन ग्राम नेगेटिव में। लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफरेंट पोरीन्स होते हैं।
ड्रग को रीच करना है इन देयर फाइनल डेस्टिनेशन, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, इनकी तरफ आने के लिए इनको एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर तक आने के लिए ये क्रॉस करनी पड़ती है सेल वॉल को। ये इजीली क्रॉस करते हैं ग्राम पॉजिटिव में पेनिसिलिन ग्रुप, लेकिन ग्राम नेगेटिव में इसको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन्स, और ये इम्परमेबल है टू द एंटीबायोटिक्स, लेकिन ये पोरीन्स होते हैं, इस थ्रू पोरीन्स ये इनकी एंट्री है विद इन द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो स्पेशल स्पेस है बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आने के लिए जो ग्राम नेगेटिव को क्रॉस करना है पोरीन्स, समटाइम पोरीन्स ब्लॉक होते हैं तो इनकी पेनिट्रेशन कंप्रोमाइज होती है और ड्रग एक्यूमुलेट नहीं होती इंट्रा पेरीप्लाज्मिक स्पेस में एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव में इसकी पेनिट्रेशन एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव ईजी होती है। You can see that the outer membrane cell wall or in between the cell membrane and outer wall में ये thin layer है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का, और मेन जो एक्शन है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो रिसेप्टर्स हैं पेनिसिलिन के, ये रोल प्ले करते हैं द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस में। ओके स्टूडेंट्स, के साथ आपको इनके स्टेप्स का पता होना चाहिए। 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, बाइंडिंग टू देयर रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर्स क्या है पेनिसिलिन के? स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। सेकेंड स्टेप क्या है? इनिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन और क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन ऑफ द सेल वॉल। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का, इसकी ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को स्टॉप करती है पेनिसिलिन। ये ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन क्या होते हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। सो द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल is inhibited with the use of penicillins. लास्ट में एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिन एन एंजाइम है, ऑटोलाइसिस के डिसइनिबिशन को ये रोकते हैं ड्रग्स। क्या प्रोसेस है हम इसको डिस्कस करेंगे। डिस्टर्बन ऑफ द सेल मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल डेथ। बेसिकली ये 2 स्टेप्स हैं, ये कीप इन माइंड। ये दोनों स्टेप्स में बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ड्रग, और लास्ट में जब 3rd स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलाइसिन, जो एंजाइम की डिसइनिबिशन है जिसकी वजह से सेल डेथ है। ये जो लास्ट स्टेप है रोल ऑफ पेनिसिलिन, ये बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके जी, आते हैं बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स आर द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं स्पेशल एंजाइम्स, यही रिसेप्टर्स हैं पेनिसिलिन के, और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम कैन एक्टिवेट ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। तो आप इसको अटैच होती हैं पेनिसिलिन और ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन को ब्लॉक करती है। किस तरह होगा हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, दे कैटालाइज द फाइनल स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ peptidoglycan, important part of the bacterial cell wall. You can see that the structure of penicillin binding proteins और basically special enzyme है जो transpeptidase enzyme है जो synthesize करते हैं special component of gram negative and gram positive cell wall peptidoglycan structure को। ओके जी, सेकेंड स्टेप इनिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन और क्रॉस लिंकिंग। बैक्टीरियल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। इट completely surrounded the cytoplasmic membrane, maintain the cell shape, prevent the cell lysis from the intra high osmotic pressure। ये एक शेप को प्रिजर्व रखते हैं आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल, और इंटेग्रिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को ये प्रिजर्व रखते हैं। सो पेप्टाइडोग्लाइकेन इज़ यूनिक टू बैक्टीरिया सेल वॉल एंड इज़ मच थिकर इन ग्राम पॉजिटिव एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यू कैन सी द ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन है और वेरी थिन इन ग्राम पॉजिटिव लेयर। Peptidoglycan consists of polysaccharides and acetyl
glucosamine and N-acetyl muramic acid and polypeptides. बेसिकली जो मेन स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकेन का वो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन से है। पहले हम डायग्राम पे आते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन सी दैट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. Peptidoglycan is composed of polysaccharide and polypeptide. Polysaccharide में main two N-acetyl muramic acid और N-acetyl glucosamic acid with polypeptide chain है. The main पेप्टोग्लाइकेन, द मेन जो इंटेग्रिटी ऑफ द सेल है उसको इंटैक्ट रखते हैं. हमने बेसिकली इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करना है विथ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन्स. क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? बेसिकली ये जो सेकंड डायग्राम है ये 3D डायमेंशन में आपको बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ सिंगल लेयर का नहीं है, ये डबल लेयर होती है और इनके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहते हैं. और ये एक जस्ट लाइक अगर आपने देखा कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आयरन की जो बाइंडिंग होती है, आयरन का जो पिलर बांधते हैं बाद में जिसमें कंक्रीट डालते हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर पहले तो दोनों तरफ आयरन या सरिया बांधते हैं, उसके साथ एक लोहे की तार से उसको जॉइंट लगाते हैं. द सेम सेंस ये जो स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, इसमें जो पॉलीसैकेराइड्स हैं एज ए आयरन और पॉलीपेप्टाइड्स आप उसको जॉइंट लगाते हैं विथ डिफरेंट तार होती है. और इसी को अगर आप सेकंड एग्जांपल्स देखें तो आपने चटाइयाँ देखी होंगी जो खजूरों के पत्तों से बनती हैं, उसको एक दूसरे के अंदर उसको पेनिट्रेट करके ऊपर से सुई धागे से सीते हैं. जो बेसिकली जो पत्ते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स हैं डिफरेंट टाइप के, और जो सुई से सीते हैं धागा इज़ ए पॉलीपेप्टाइड्स. अब इसी को हम कंसेप्ट को ज़हन में रखें तो बेसिक जो मेन प्रिकर्सर है इस मेम्ब्रेन का वो कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीसैकेराइड, पॉलीम्यूरेमिक एसिड और ग्लूकोसामाइन. ये मेन प्रिकर्सर है. म्यूरेमिक एसिड के साथ 5 अमीनो एसिड्स की चेन अटैच होती है. बेसिकली ये सिंथेसाइज होता है विद इन द सेल. विद इन द सेल्स जब ये प्रिकर्सर्स फॉर्म होते हैं तो ये प्री प्लाज्मिक स्पेस में आते हैं और प्री प्लाज्मिक स्पेस में एक दूसरे के साथ ये ज्वाइन करते हैं. लेकिन इनकी जो ज्वाइनिंग है इनको एक दूसरे के साथ जो स्टपल करना है, वेल्डिंग करना है या सुई धागे से सीना है, द सेम एक्शन नोन एज ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन. जब लोहे को बांधते हैं तार के साथ, जब तार को मोड़ते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन. सुई से अगर चटाई को सीते हैं तो धागा जो सी रहा है, ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम आल्सो नोन एज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. ये मेन एक्टिवेटर है जो इस पॉलीपेप्टाइड्स को एक दूसरे के साथ स्टेपल करता है. और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इस एक्शन के? जब ये जो पेनिसिलिन्स है, स्पेशल टाइप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसकी एफिनिटी है टूवर्ड्स देयर रिसेप्टर साइड. जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, जो पेप्टाइड्स प्रोटीन्स हैं, जो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शंस को इफ़ेक्टिवली उसको एक्टिवेट करके एक दूसरे के साथ जॉइंट को मजबूत करती हैं पॉलीपेप्टाइड्स के. ये इसके साथ आके ज्वाइन करते हैं और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं. जब ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन या क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाती है और जब वीक होती है तो हाई ऑस्मोटिक इंट्रासेलुलर प्रेशर से ये सेल बर्स्ट कर जाता है. तो मेन एक्शन ऑफ beta lactam penicillin to inhibit the action of transpeptidase enzyme also known as penicillin binding proteins. और penicillin binding proteins का जो मेन एक्शन था ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन वो नहीं होता, सेल वॉल वीक हो जाती है. वीक होने की वजह से जो ऑस्मोटिक सेलुलर प्रेशर है वो उसकी वजह से सेल वॉल और सेल शेप बर्स्ट हो जाता है. मेन मैकेनिज्म ऑफ पेनिसिलिन्स एक्शन. ओके स्टूडेंट, ये जो लास्ट स्टेप था
पेनिसिलिन का सेल डेथ. Cell death means bactericidal activity of this drug. Disinhibition of autolysin. Autolysin is special type of enzyme होते हैं जो सेल अपनी सर्वाइवलेंस के लिए ये रिलीज़ करता है टू फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और सेल वॉल स्ट्रक्चर को. जहाँ ज़रूरत होती है वो कट लगाता है थ्रू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लाइसिन से और फिर ही यूनियन करता है और इस तरह रीमॉडलिंग उसके सेल की होती है. लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ केमिकल लाइक पेनिसिलिन इसकी जो रिलीज़ तो होती है लेकिन इसकी रोकने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है. डिसइनिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ ऑटोलाइसिन और ये रोक नहीं पाता. ऑटोलाइसिन की एक्सेस अमाउंट इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है. मे बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल मे बैक्टीरिया प्रोड्यूस ऑटोलाइसिन डिग्रेडेटिव एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द नॉर्मल रीमॉडलिंग ऑफ द सेल वॉल, अदरवाइज दे आर इनहिबिटेड. जब ज़रूरत नहीं है बंद हो जाती है. इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन्स दे आर डिसइनिबिटेड एंड degradative action occur within the absence in the absence of cell wall synthesis. Destruction of cells can cause lysis. Hence the penicillins act as a bactericidal drug. Basically the main mechanism of 3 steps, जिसमें first step में binding, second में inhibition of transpeptidation reaction और number 3 में cell death. Okay जी, students आते हैं mechanism of bacterial resistance of penicillins. We have different penicillin resistance mechanism. आपसे examiner पूछता है, you should know about all these kind of resistance mechanism. पहला enzymatic hydrolysis of the drug by beta lactamase. ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टामेज और ये बीटा लैक्टामेज मेटाबोलाइज करता है, इनएक्टिव करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को. ये बेसिकली अटैच होते हैं, इसकी एफिनिटी होती है इन एंजाइम की टूवर्ड्स ड्रग्स और ड्रग को इनएक्टिव डी शेप करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं. वो अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के काबिल नहीं रहता. तो फर्स्ट जो रीज़न है ड्रग रेजिस्टेंस का वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स है. सेकंड, अल्टर द शेप ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. जो एंजाइम्स हैं ये अपनी शेप चेंज करते हैं. जब ये इनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, यू कैन सी द म्यूटेशन इन द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, तो ये ड्रग अपने एंजाइम के साथ एफिनिटी बाइंडिंग नहीं कर सकता और ये अपना काम उसी तरह जारी रखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस में. सेकंड अल्ट्रेशन, सेकंड मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? म्यूटेशन और अल्टर द टारगेट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. थर्ड में क्या है? इम्पेयर द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग टू द टारगेट to the final destination, जहाँ penicillin binding proteins पड़ी हैं only in the gram negative bacteria due to the presence of outer membrane और a special type of porins होते हैं. अगर वो चोक हो गए हैं, उनके अंदर obstruction है, तो इनकी accumulation within the cell नहीं होती है. This is more important if the bacteria is also beta lactamase producing enzyme. एक तो ड्रग नीचे नहीं आ रही और जितनी आती है नीचे बैक्टीरिया अपना एंजाइम प्रोड्यूस करता है और उसको डिग्रेड करता है. द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस. फोर्थ में क्या है? एक्टिव इफ्लक्स पंप है. स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. वो क्या करती है? बेसिकली जितना ड्रग सेल के अंदर आता है वो फ़ौरन उसको बाहर निकाल देती है. इफ्लक्स जो पम्प्स लगा के इफ्लक्स पंप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में we produce in the gram negative bacteria transport the drug from the periplasm space back to the outer space of the cell. तो मेन एक्शन ये है. फोर्थ पे अगर आप देखें तो इफ्लक्स पंप होते हैं जो एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग को इनहिबिट करते हैं. और लास्ट में फिफ्थ में अगर आप देखें नेचुरल रेजिस्टेंस है. ये ड्रग उन इन्फेक्शंस में काम नहीं करती जहाँ सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ना हो, लैक ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट ना हो, और वो ड्रग्स जो वेरी स्लो ग्रोइंग microorganisms हैं like mycoplasma. So we have 4 to 5 mechanism of drug resistance with penicillin or beta lactamase antibiotics.
ओके जी, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन जी, बेसिकली नेचुरल पेनिसिलिन है। फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई पैरोजिन वेरिएंट्स है, मेनिंजोकोकाई, न्यूमोकोकी, फोर्थ में गोनोकोकी नॉन बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग और स्टेफिलोकोकी नॉन बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग। सिक्स में ट्रिपेनोसोमा में ट्रिपेनेमा पैलिडियम एंड अदर स्पेरोकीट्स में, क्लस्ट्रोडियम परफिंजिस में, एक्टिनोमाइसिस में जो एनारोबिक इन्फेक्शन है, और नॉन बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन जी बेसिकली नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं पेनिसिलिन ग्रुप के। Use of penicillin G mainly used with beta hemolytic streptococcal pyogen infection, acute tonsillitis, pharyngitis, scarlet fever में, pneumonia में, Lyme arthritis में, meningitis और endocarditis में देते हैं। इसके साथ हम endocarditis with viridian streptococcus are the most common cause of infection endocarditis। इसके साथ pneumococcal pneumonia और meningitis में, और meningococcal meningitis में। इसके साथ enterococcal endocarditis with aminoglycoside। Student, sometime very lethal infection we can eradicate with combination therapy। पेनिसिलिन के साथ हम aminoglycosides देते हैं। aminoglycosides प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं, इनका डुअल एक्शन है, एक सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स, सेकंड प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स, और ये जो लाइटिक इफेक्ट है एंटीबैक्टीरियल ड्रग का उसको पोटेंशिएट करता है। 6 में सिफिलिस, और सिफिलिस में बेसिकली वी कैन यूज़ एज ए प्रोफिलैक्सिस। काउंटर पार्ट ऑफ कपल में हम एक को हो जाए तो सेकंड को, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में है तो सिफिलिस में प्रोफिलैक्टिकली भी देते हैं और एज ए ट्रीटमेंट में। बेंजाइल पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट एवरी 3 to 4 वीक्स फॉर प्रोफिलैक्सिस एंड 2.4 मिलियन यूनिट once a week 1 to 3 weeks के लिए for the treatment of syphilis. No antibiotic resistance has been reported with the use of penicillin G in syphilis patient. इसके बाद सहमत में देखें तो एक्टिनोमाइकोसिस एनारोबिक इन्फेक्शन है, ट्रीट करते हैं पेनिसिलिन से। और लास्ट में क्लस्ट्रोडियम इन्फेक्शन, गैस गैंग्रीन एनारोबिक इन्फेक्शन है, लीथल इन्फेक्शन वी कैन ट्रीट विद द बेंजाइल पेनिसिलिन। The main clinical or therapeutic uses of penicillin group. Adverse effect of penicillins. Penicillins are remarkably safe drug, no marked direct toxicity. मैंने बताया कि इतनी सेफ है कि हम प्रेगनेंसी में लैक्टिंग वुमेन मदर जो फीडिंग नर्सिंग वुमेन पे जो फीड कराती हैं बच्चों को, उनको भी हम एडवाइस कर सकते हैं। इन 5%, लेकिन 5% ऑफ इंडिविजुअल्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो एक इसकी गड़बड़ है कि ये जो ड्रग है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ज़्यादा है। 0.5% टाइप 1 में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और वेरी लीथल जो है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन है 0.05% है। मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इसमें जो मेटाबोलाइट्स हैं इसके पेनिसिलिनोइक एसिड एक्ट एज ए हेप्टेन आफ्टर द कोवलेंट रिएक्शन विद प्रोटीन्स कॉज immunological reaction. Cross allergic with other बीटा लैक्टम्स के साथ है, एक पेनिसिलिन की ड्रग के साथ तो बाकी सब के साथ क्रॉस एलर्जिक रिएक्शंस हैं। आप पेशेंट को फिर ये ग्रुप रिकमेंड नहीं करते। डिसेंसिटाइजेशन में भी डन, लेकिन डिफरेंट अदर ड्रग्स अवेलेबल है, इतना ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि पेशेंट को डिसेंसिटाइज किया जाए। डिसेंसिटाइजेशन अमूमन हम लो डोज से फिर आस्ता आस्ता डोज बढ़ाते हैं कि वो टॉलरेट डेवलप कर जाए, जो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाए, जो इसके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में है, वेरी एक्यूट लीथल इफेक्ट इज़ एक्यूट एनाफिलैक्सिस और एनाफिलैक्टिक शॉक सीन इन 0.05%। मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट अमूमन ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होती है। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए हमेशा। ये ड्रग के पहले हम पेशेंट को एक टेस्ट डोज देते हैं जो आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट में पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। हम इंट्राडर्मल
पुश करते हैं लिटिल अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन, और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पुश की है वहाँ अगर इन्फ्लामेटरी साइन है, व्हील है, रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, तो फिर हम पेशेंट को फर्दर ये ड्रग एडवाइस नहीं करते, क्योंकि सम टाइम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, और अगर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है तो फिर आप एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की ट्रीटमेंट को प्रॉपर पेशेंट को देते हैं, अदरवाइज़ पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसके साथ कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, रैशेस वगैरह पड़ते हैं, अर्टिकेरिया लाइक डिसऑर्डर्स हैं, सीरम सिकनेस लाइक सिंड्रोम्स हैं। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक अप टू 10 डेज़ तक पेशेंट को एडवाइस करते हैं। एंजियोडेमा, यू कैन सी दैट उन सोच जाते हैं ये एडवर्स इफेक्ट हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, कुछ एलर्जिक रीनल डिस्टर्बेंस है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है विथ मिथिसिलिन, अमूमन ब्लड डिस्टर्बेंस है, जिनोफीलिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, ये भी एलर्जिक रिएक्शन है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, कुछ वेस्कुलाइटिस एक्सेट्रा। ओके जी, अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, इंट्रामस्कुलर दिया तो पेन करता है बहुत ज़्यादा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आफ्टर द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सम टाइम जाती है तो निक्रोसिस भी कॉज कर सकती है, फ्लेबाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स भी कॉज कर सकती है, इन हाई डोजेस में सीजर्स कॉज करती है उन इंडिविजुअल्स में जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, arachidonitis encephalopathies after the intrathecal injection of penicillin, sometimes dizziness, tinnitus, headache, hallucination or seizures with procaine penicillin के साथ पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। कैटाइन टॉक्सिसिटी, स्टूडेंट्स हम अमूमन पेनिसिलिन जो जी है अमूमन या पोटाशियम के साथ या सोडियम के साथ एज ए मेडिसिन देते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंट विथ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट ड्रग विथ मेडिसिन। जो मेडिसिन के साथ ड्रग के साथ हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं, लाइक हम पेनिसिलिन के साथ पोटाशियम ऐड करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी को प्रिजर्व रखने के लिए और पैलेटेबल और पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। जिन इंडिविजुअल्स में रीनल फेलियर है, अगर आप पेनिसिलिन जी पोटाशियम के साथ देते हैं तो हाइपरकालीमिया और हाइपरकालीमिया लाइक साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, और इसी तरह सोडियम की एक्सेस से हाइपोकालीमिया कॉज कर सकता है इसकी एक्सेस अमाउंट पेनिसिलिन जी की। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है जिस हेज़मियर रिएक्शंस, ये अमूमन सिफिलिस के पेशेंट में आता है जब आप पेशेंट को फर्स्ट डोज पेनिसिलिन जी की लगाते हैं। सिम्टम्स क्या है? सेवरल आवर्स आफ्टर द फर्स्ट इंजेक्शन इन सिफिलिस पेशेंट फील करता है चिल, फीवर, हेडेक, माइलेज, ऑर्थोपैथी एंड प्रोमिनेंस ऑफ क्यूटेनियस लीजन। कॉज क्या है इसका? ड्यू टू द किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पायरोकीट्स जो सिफिलिस कॉज करते हैं, इनकी लिबरेशन ऑफ टॉक्सिन, ये भी बाद में टॉक्सिक इफ़ेक्ट इनके जो स्पायरोकीट्स हैं, डेड स्पायरोकीट्स हैं, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह ये बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और सम साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। अगर पेशेंट को ये रिएक्शन होता है तो फिर हम फर्दर इसका इंजेक्शन या फर्दर ट्रीटमेंट को इनिबिट करते हैं और पेशेंट को स्टीरॉयड देते हैं, हाइड्रोकोर्टिकॉइड्स जिसको सिलोकोटिव्स इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। इसके साथ कुछ नेफेसिलिन के न्यूट्रोपेनिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऑक्सासिलिन के हेपेटाइटिस, मेथिसिलिन कैन कॉज हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस कॉज कर सकता है। एम्पिसिलिन जीआईटी अपसेट, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। समटाइम ये क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन या नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो सुपर इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस और मे बी वेजाइनल कैंडिडियासिस। ये सुपर इन्फेक्शन है जब पेशेंट ड्यू टू द हाई डोज ऑफ पेनिसिलिन जो उसका इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज्ड होता है ड्यू टू किलिंग इफेक्ट ऑफ द गुड फ्लोरा के जब डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर तो इम्यून सिस्टम उससे कंप्रोमाइज़ होगा तो सुपर इन्फेक्शन, अमूमन फंगल इन्फेक्शन
पेशेंट को होते हैं. Penicillin and amoxicillin can cause skin rashes that are not allergic in nature. In patient with infectious mononucleosis treated with ampicillin, incidence of micropupillar rash in these patients 100% हो जाते हैं. These kind of disorders of the skin. ओके जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया अबाउट द बीटा लैक्टम एंड नॉन बीटा लैक्टम सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स ड्रग्स. उसके साथ हमने पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन को, पेनिसिलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस को, लास्ट में क्लिनिकल इंडिकेशंस हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं इंशाल्लाह, और एडवर्स इफेक्ट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स को डिस्कस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.